हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज से जुड़ी हुई सारी जानकारियां ए टू जी इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पहले पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम लोग तब तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक, दैट मीन्स apart from this particular session you do not need to worry about bill of exchange। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी बातें, एंड वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली। ओके, without any delay we will start this particular session। as I told you कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, that is generally part of negotiable instruments। Okay, so we have number of negotiable instruments, like we have check, we have promissory note, and we have bill of exchange. These three are very important one। Okay, so promissory note, that generally comes under the section 4 of negotiable instrument act 1881। then we have bill of exchange section 5, and section 6, in section 6 of negotiable instrument act 1881 check system is defined। okay, ये bill of exchange document क्या होता है, what is the requirement, and how many parties are involved in bill of exchange, and what are the different types, so we will understand that particular one। अब हम लोग बार बार negotiable instrument की बात कर रहे हैं। before coming to the bill of exchange, first we will talk about the Negotiable Instrument Act 1881। So as the name state, it is an act which govern negotiable instruments। okay, so negotiable क्या होते हैं? जो किसी चीज को negotiate कर रहा होता है। okay, so in term of payments which generally negotiate cash। okay, so let's say if you have to make some payments, अगर आपको किसी को कोई payment करना है, तो you can, you have multiple options। you can transfer money online, or you can give it through cash, or apart from these two options you can also use these particular instruments। okay, like you can make payments by using a check, or by bill of exchange, or by a promissory note। okay, so that is एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कहीं ना कहीं कैश के रिप्लेसमेंट में यूज किया जा रहा है। सो वी आर यूजिंग दीज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ कैश। ओके, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट्स which promise payment to the assignee। assignee is basically जिसके नाम पे वो इशू किए गए हैं। ओके, द पर्सन whom it is assigned or to given। ठीक है, let's say I'll give you an example of let's say there are two parties in trade। दो parties आपके हैं, one is Mr. A who is a seller। ठीक है, ये कौन है? आपका विक्रेता है। ओके, एंड वी हैव अनदर पार्टी मिस्टर ए हु सेल गुड्स टू मिस्टर बी। इसने मिस्टर बी को आपका सामान बेचा, एंड सो बी इज बायर। ओके, सो इन आवर केस बी इज बायर। नाउ द थिंग इज, देखो आप यहाँ पे क्या है, जैसे ए ने आपका बी को सामान बेचा है, सो बी इज लाइबल टू मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट। सो इन केस ऑफ promissory note, basically B will make a promise, basically कि I, Mr. B, promise to pay this amount to Mr. A on this date। So similarly in bill of exchange, if you talk about the bill of exchange, so these are creditor documents। ठीक है, so bill of exchange क्या होता है? creditor documents होते हैं जिसमें Mr. A will give an order to Mr. B। ठीक है, तो वो क्या करेगा? I, Mr. A, order to pay you Mr. B this amount at the rate of this person, or on this particular future date। तो बेसिकली these all are वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या चेक हो, या प्रोमिसरी नोट हो, ये सब क्या है आपके? दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, जहां पे चीजें आपका रिटन में किए गए हैं। ठीक है, एंड people they made promises through these particular documents। okay, so assignee is, in our case, if it is a bill of exchange, assignee is Mr. B। ओके, दी डेटर्स वी कैन से, जो डेटर है आपका, जिसने कहीं ना कहीं अगर इसने सामान खरीदा है तो ये लाइबल होता है उस पर्टिकुलर सामान के बदले में पेमेंट करने के लिए। ठीक है, सो असाइनी, और
अ स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे चेक के केस में होता है ना, व्हेन यू इशू चेक, आपने किसी XYZ पर्सन के नाम पे चेक इशू कर दिया, ठीक है। इन इंडिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके जैसे मैंने नाम लिए, वो चेक हो या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, सो दीज ऑल आर गवर्न थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, या फिर इनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की जो पावर है वो। तो नाउ वन थिंग मोर गाइस कि यू कैन नॉट मेक एनी फेक प्रोमिस ऑन दीज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि डिसऑनर ऑफ अ चेक इज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को चेक इशू करते हैं, अगर वो चेक बाउंस होता है, अगर पेमेंट नहीं होता, डिसऑन होता है किसी भी रीजन से, तो वो एक क्या होता है, क्राइम माना जाता है, ठीक है। एंड दैट इज अ लाइक उसको क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी के अंदर आपका रखा है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो या चेक हो, ये सारे गवर्न किए गए हैं इस एक्ट के द्वारा। सो दीज आर लाइक एक लीगल बाइंडिंग वहां पे आपका हो जाता है, ठीक है। दिस लॉ डिफाइन दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल्सो डील विद ईच टाइप ऑफ देम इंडिविजुअली। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि promissory note that generally comes under section 4, section 5 bill of exchange and section 6 जहां पे आपका डिफाइन किया गया किसको, चेक सिस्टम को। सो these all are negotiable instrument and these are governed through this particular act आपका, ठीक है। so negotiable instrument act 1881 जो कि एक एक बेसिकली जो एक लीगल रूप आपका प्रोवाइड करता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, एंड इनसे संबंधित सारी बातें, ठीक है, कैसे आपका इनकी एक्टिविटीज होंगी, देयर विल बी हाउ मेनी पार्टीज। जैसे इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यू विल फाउंड 3 पार्टीज, ड्रॉई एंड पेई। इन केस ऑफ चेक अगेन यू विल फाउंड 3 पार्टीज। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट यू विल फाउंड 2 पार्टीज। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, या इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो लीगल रूप आपका है वो डिफाइन किया गया कहाँ पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के इन डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। सेक्शंस याद रखिए क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आपको टेस्ट किए जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक जैसे व्हेन यूल रीड अबाउट दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन डिटेल, ठीक है, खासकर अपने पीपीबी के सब्जेक्ट में जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पे डिसऑनर ऑफ चेक वो बहुत अच्छे रंग से एलिब्रेट किया गया फ्रॉम सेक्शन 138 टू सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जहां पे डिसऑनर की जो भी कंडीशंस हैं, पेनल्टीज हैं, एवरीथिंग इज डिफाइंड अंडर दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो नाउ so far we just talk about the basic introduction of the negotiable instrument. So negotiable instrument क्या होते हैं, so which basically we present these particular documents in replacement of cash के बदले में हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। these all are written documents and they governed by negotiable instrument act 1881, ठीक है। और NI Act 1881 का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने समझा। नाउ वी विल कम टू आवर पॉइंट, ओके। सो हम लोग जैसे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को इन डिटेल। तो अब हम लोग बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। सो बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वन, आई विल गिव यू द सेम एग्जांपल एज वी डिस्कस। सो देयर आर 2 पार्टीज, वन इज सेलर। सेलर मींस जो बेच रहा है चीजों को, ठीक है, उसका अकाउंट क्या होगा, दैट मींस ही इज अ क्रेडिटर। सो लेट्स से मिस्टर Mr. A is seller, so his account will get credited, and he sell goods to buyer, and buyer is suppose that Mr. X, okay, so he is a debtors. So buyer कौन होगा आपका, debtors, जिसको पेमेंट करनी है, ठीक है, जिसके अकाउंट से पैसा कटना है, ओके। सो अब देखो क्या हुआ, देयर इज अ ट्रेड बिटवीन दीज 2 पार्टीज, मिस्टर ए एंड मिस्टर एक्स, जहां पे ए ने कुछ सामान आपका, लेट्स से मिस्टर ए सेल वर्थ रुपीज 5 लाख गुड्स टू मिस्टर एक्स, ठीक है। तो इसने 5 लाख रुपए का सामान बेचा आपका एक्स को। नाउ एक्स इज लाइबल टू पे 5 lakh rupees to Mr. A. तो in that particular case, they can like इनका पेमेंट कैसे हो सकता है, they can do a payment through cash or that online transaction, or they can use this particular document
एज अ प्रूफ. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या होगा इन दिस पर्टिकुलर केस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, दिस इज अ क्रेडिटर डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो इट इज इश्यूड बाय अ क्रेडिटर. ओके, सो ड्रॉर विल बी creditor for of that particular transaction. Okay, and in our case, हमारे केस में क्रेडिट किसका अकाउंट होना है? आपका मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट होना है. ठीक है, सो नाउ दिस मिस्टर ए विल पास एन ऑर्डर टू मिस्टर एक्स. ए आपका क्या करेगा? एक्स को ऑर्डर पास करेगा. आई ऑर्डर यू टू पे दिस अमाउंट इन दिस गिवन फ्यूचर डेट. ओके, तो जैसे अगर आप अब देखो यहाँ पे ए इसको इश्यू करेगा, सो ही इज अ ड्रॉर एंड ही इज अ ड्रॉई. ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ में. पे कैन बी लाइक, पे कौन हो सकता है? वो ए भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी या कोई बैंक भी हो सकता है. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. अब आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी इसका मिलेगा. ठीक है, सो क्या कहता है आपका फॉर्मेट? 2 months आफ्टर पे टू मी. सो इट्स एन ऑर्डर. मैं क्या कर रहा हूं? ऑर्डर दे रहा हूं किसको? एक्स को. पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹4 lakh ओनली फॉर वैल्यू रिसीव. तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन आपका, जैसे सेलर ने आपका बायर को बेचा सामान, सो नाउ बायर इज लायबल, सो सेलर विल इशू अ डॉक्यूमेंट दैट इज जनरली नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज. और इसमें आपको दोनों के ही सिग्नेचर्स मिलेंगे. सो बोथ द पार्टीज दे हैव टू साइन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स. ओके, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इनको ध्यान रखिए, क्योंकि इनके बेसिस पे आप अभी देखेंगे स्टेटमेंट या जो क्वेश्चंस किस तरीके से आपका बनते हैं. ओके, सो होप दिस इज क्लियर. नाउ वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन. सो बिल ऑफ एक्सचेंज रेफर टू अ लीगली बाइंडिंग. तो यहाँ पे क्या बोला गया? पहला स्टेटमेंट आपका, it refers to a legally binding. So legally binding means it's a legal document. So legally binding written document. Okay, written document. So this document is this document is in written. Okay, ये जो आपका जो भी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेंगे वो क्या होगा? आपका रिटर्न में होगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड इज लाइक इट्स अ लीगली बाइंडिंग. why it is generally known as legally binding? Because it comes under Negotiable Instrument Act, NI Act 1881. So it work according to this, and section is 5. So when we like being a seller, when we issued this particular one, we issued as per this particular section. Okay, so bill of exchange refer to a legally binding written document which instruct or order a party to pay a predetermined sum of money to second or another one. Okay, so in our case, like A issue this one to X to pay this amount on this future date or after 2 months. Okay, so it is defined under this particular category. I hope समझ में आया होगा. तो पहले चीज हमारे क्या था? It is a negotiable instruments. Okay, why? That's why it is called legally binding. It's a written document. Okay, and both the parties, they have to be agree on that particular this particular documents, and they have to sign that particular one. So दोनों ही parties का agree होना जरूरी है. If A is passing that particular order, so B should agree with that particular amount. ठीक है, so B को agree होना पड़ेगा कि हाँ इस amount के लिए मैं इस पे आपका agree हूँ. And this is a written documents. अब legal definitions की अगर हम लोग बात करें, legal definition means as per नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 5. सेक्शन 5 में ये जो चीज डिफाइन किया गया, तो सेम चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है आपका लीगल डेफिनेशन. तो आप अगर इसको समझेंगे चीजें आपका सेम निकल के आएंगी जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है. सो एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन इन राइटिंग. सो फर्स्ट थिंग इज सेम, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर. सो यहाँ पे जो चीजें आपकी हैं कि जो टाइम दिया गया है, या फिर जो अमाउंट आपका मेंशन है, या फिर जो ऑर्डर पास हुआ है फ्रॉम ए टू एक्स, सो दीज आर दीज पर्टिकुलर थिंग्स, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज फिक्स. इसमें ऐसा कोई भी इफ एंड बट आपका नहीं रहता है. ओके, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन. सो डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, या फिर आपका मिस्टर ए भी हो सकता है, या जो सेलर आपका जो क्रेडिटर है वो भी हो सकता है. तो दैट्स व्हाई दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज क्रेडिटर डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू बेसिकली जो
क्रेडिटर है वो डायरेक्ट करता है या वो आपका ऑर्डर देता है डेटर को कि आपको इतना अमाउंट इस स्पेसिफिक डेट पे आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ जो भी डेट आपका होता है फ्यूचर डेट जो भी है उस डेट पे हमें पे करना है, मुझे पे करना है या फिर मेरे बिहाफ पे इस XYZ पर्सन को या बैंक को आपको पे करना है. सो दैट इज जनरली नोन एज योर बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ इफ यूल कम टू द फीचर में से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो प्लीज डू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन. कैसे होंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट part of bill of exchange features, okay, or which is not a feature of bill of exchange or which is a feature of bill of exchange. तो इस तरीके से थोड़ा सा तो चीज़ें आपका सेम होंगी, जैसे रिटन डॉक्यूमेंट, अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय बोथ पार्टीज एंड ऑल, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी. जैसे सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग. पहला चीज़ क्या है, ये आपका राइटिंग में होना चाहिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग बात कर रहे हैं. दूसरा, इट मस्ट कंटेन अ कन्फर्म ऑर्डर. So a confirm order to make payment and not just a request. Okay? So I order to pay you. So that is a confirm order and that is an unconditional order कि वहाँ पे हम लोग कोई if and but आपका नहीं लगा रहे हैं. इस हमने इतना आपको डिलीवर किया है ना, आपको इतना पे करना है. That's it. Everything is clear cut. Okay. The order should not have any condition. There should not have any if and but. सारी चीजें आपका clear हैं. Okay. The bill of exchange amount should be डेफिनाइट, मतलब कितना अमाउंट का है, 10,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, वो सारे अमाउंट आपका फिक्स होना चाहिए विदाउट एनी कंडीशन. फिक्स डेट ऑफ फॉर द बिल फॉर द अमाउंट टू बी पेड, किस डेट पे आपका पे करना है वो डेट आपका आफ्टर 1 मंथ दिस डेट, आफ्टर 2 मंथ ऑन दिस डेट, वो सारी चीजें आपका फिक्स होना चाहिए. द बिल मस्ट साइन बाय बोथ द ड्रॉर और ड्रॉई. तो जो भी ड्रॉर एंड ड्रॉई है, सो ड्रॉर इज the creditor account and drawer is debtor. Okay, so seller is basically drawer and the buyer is a debtor account and he is a drawer in this particular case. Okay, the amount stated on bill of exchange should be paid on demand or on the expiry of that particular documents. अब देखो यहाँ पे क्या on demand means जब आप टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे रंग से समझ में आएगी कि ऑन डिमांड क्या होता है कि जिस मतलब जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे फॉर पेमेंट उस डेट पे आपको पे आउट हो. दूसरा जैसे डिमांड बिल जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा होता है आपका दैट इज कॉल्ड ऊसेंस बिल. दैट इज कि जहाँ पे एक फिक्स डेट आपका लिखा रहता है, मेच्योरिटी डेट, कि इस डेट पे आपको इसको पे आउट करना है. सो इट कैन बी लाइक ऑन डिमांड भी हो सकता है एंड ऊसेंस भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम मेजर फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो इनको ध्यान रखेंगे. और ये सारी चीजें हमने प्रीवियस जो फॉर्मेट देखा या फिर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो डेफिनेशन आपका दिया था उसको देखा, तो वहां पे सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पार्टीज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज. आई होप अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि वी हैव 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज. दीज आर ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई. 3 पार्टीज आपके हैं. ठीक है, ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, ये भी क्लियर हुआ होगा. सो ड्रॉर इज who making that order, जिसने वो ऑर्डर दिया है, मतलब सेलर, क्रेडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर डील. ओके, एंड ड्रॉई इज बेसिकली द रिसीवर ऑफ गुड्स और द डेटर जिसको पेमेंट करना है. ठीक है, जिसके अकाउंट से पैसा कटना है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द पे कैन बी ड्रॉर भी पे हो सकता है वो अपने नाम पे भी, या किसी थर्ड पार्टी के नाम पे भी वो पेमेंट करवा सकता है. ओके, सो वी हैव 3 पार्टीज. फर्स्ट वन इज ड्रॉर. सो ड्रॉर इज द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. द बिल इज साइन बाय ड्रॉर एंड ड्रॉई एज वेल. द क्रेडिटर, सो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है. ओके, सो दिस लाइन. ओके, सो द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड to receive payment from the debtor can draw a bill of exchange. So basically that's why it is generally known as creditor document. Okay, so creditor जो seller आपका होता है, जिसको पैसा रिसीव होना होता है, वो बेसिकली इसको इशू कहते हैं. क्योंकि इशू भी जब होता है ना, किस फॉर्म में होता है, आई ऑर्डर टू पे यू, सो आई ऑर्डर टू, मतलब वो क्या करे, एक ऑर्डर दे रहा है आपका कि हमने आपको इतना सेल किया था, उस सेल के बदले में हमने आपको इतनी गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, उसके बदले में आपको इतना पेमेंट करना है. तो ये फ्यूचर डेट है, इस जिस डेट पे आपको वो पेमेंट कराना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज ड्रॉर, अनदर वन इज ड्रॉई. सो ड्रॉई कौन हो गया, जिसके नाम पे वो बिल आपका ड्रॉ किया गया है. ओके,
सो द बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज. सो जैसे हमारे केस में क्या था, ए वॉज ड्रॉर एंड एक्स वॉज द ड्रॉई. ए ने सामान बेचा था 5 लाख रुपए का एक्स को या बी को, तो ए इज अ क्रेडिट, ए का अकाउंट क्रेडिट होना है, तो ए इज अकाउंट विल क्रेडिटेड बाय 5 लाख रुपीज. जो पेमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा, बी के द्वारा होगा. सो बी इज the drawee in this particular case. A will give order to B. Okay. So drawee is the person upon whom the bill of exchange is drawn. So I order to pay you. I means वहां पे क्या होगा, I Mr. A is order to pay you Mr. B. इस तरीके से वो बिल आपका ड्रॉ किया जाएगा. ओके. ड्रॉई इज द डेटर. जैसे आपका ड्रॉर क्या था, क्रेडिटर था, तो ड्रॉई कौन हो गया आपका, डेटर. हु हैज टू पे द मनी टू द ड्रॉर. सो ही ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर. ठीक है, एक्सेप्टर क्यों इसको हम लोग बोलते हैं कि जब आपका ये डॉक्यूमेंट बनता है तो एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि दोनों की जो ड्रॉर है जो ड्रॉई, दोनों के ही इसमें सिग्नेचर आपको मिलेंगे. सो ड्रॉर जिसने ड्रॉ किया, आई ऑर्डर टू पे यू दिस दिस दिस. अब वो जब ड्रॉई के पास गया, इफ ही इज लाइक अगर वो इस पे सिग्नेचर कर रहा है तो दैट मीन्स वो उस चीज को, उस पर्टिकुलर बिल को एक्सेप्ट कर रहा है. ओके. सो दैट ही इज द एक्सेप्टर. पे कैन बी ड्रॉर, जो मतलब वो अपने डायरेक्ट मतलब ए अपने अकाउंट में भी ले सकता है, या वो डी या किसी XYZ बैंक के नाम पे भी उसको बनवा सकते हैं. सो द पे इज द पर्सन टू हुम पेमेंट हैज टू बी मेड, जिसके अकाउंट में पैसा जाना है. द पे मे बी द ड्रॉर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी, ये कोई तीसरी पार्टी भी आपका हो सकता है. सो ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे, दीज थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये तीन पार्टियां आपको देखने के लिए मिलेंगी. सो ड्रॉर क्रेडिटर and drawee is debtor and payee can be, वो आपका ड्रॉर भी हो सकता है, एंड इट कैन बी एनी थर्ड पार्टी. ओके. सो प्लीज डू रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके. सो जैसे अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से कुछ टाइप यहाँ पे लिखे, इनके अलावा भी कुछ चीजें और हम लोग जो पढ़ेंगे इसी सेशन के अंदर. सो फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्री बिल. डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होते हैं, ऐसे बिल जो लेट्स से ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आपका ड्रॉ किया गया, तो इसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिलेंगे. ये जो सेल आपका हुआ था, ए ने बी को जो सेल किया था, तो उस सेल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको मिलेंगे. सो डॉक्यूमेंट्री बिल. दूसरा आपका डिमांड बिल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. डिमांड बिल क्या होता है, विच इज पेबल ऑन डिमांड, मतलब जब उनको प्रेजेंट किया जाएगा उसी टाइम उनका पेमेंट होना चाहिए. उसेंस बिल क्या होते हैं, दे हैव अ फिक्स टाइम, उनका एक मेच्योरिटी डेट होना चाहिए, होता है बेसिकली फ्यूचर के अंदर. जैसे सपोज दैट द मेच्योरिटी डेट इज, इस पे जो डेट आपका लिखा है दैट इज सपोज दैट 15th ऑफ जुलाई 2023, तो ये इस डेट पे या फिर इससे पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड उसेंस बिल. इनलैंड बिल क्या होते हैं, विद इन कंट्री आपका जो यूज में आते हैं. ठीक है, जैसे इंडिया में अगर इशू हुआ तो इंडिया में ही वो आपका क्या होगा, जो ड्रॉई उसको इनकैश कर पाएगा. ठीक है. क्लीन बिल, जहां पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ कंपनसेटरी डॉक्यूमेंट इन दैट पर्टिकुलर केस. फॉरेन बिल हो गया अगला. फॉरेन बिल मतलब जैसे इनलैंड का अपोजिट, इनलैंड क्या था, विद इन कंट्री, सो दे कैन बी एक्सरसाइज विद इन कंट्री एज वेल एज आउटसाइड कंट्री. तो बेसिकली जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, दे यूज फॉरेन बिल. ओके. ट्रेड बिल, जो खाली ट्रेड के मतलब के लिए यूज किए जाते हैं, व्यापार के लिए यूज होते हैं, बाइंग सेलिंग के लिए. एंड सप्लाई बिल. ओके, जो सप्लाई, जैसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सप्लायर्स हैं, सपोज डिफरेंट सप्लायर्स, सो दे यूज दीज काइंड ऑफ बिल्स आपका. तो अब हम इन सभी को वन बाय वन डिटेल में आपका डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन वी हैव डॉक्यूमेंट्री बिल. एज आई अर्लियर टोल्ड यू, डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, देखो क्या डेफिनेशन अलग अलग होता है सबका. तो इफ यू अंडरस्टैंड, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो चीजें बताई ना, अगर वो चीज आपने थोड़ा ध्यान से वन लाइनर में अगर आप उनको लिख लोगे ना, तो आपको इतना डिटेल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. स्टिल आई विल गो थ्रू द ऑल द टाइप्स one by one in detail as well. So in this type of bill of exchange, supported by the relevant document that confirm the genuineness of the sale or transaction that took place between buyer and seller. तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था जहां पे हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए आपका जिसने सेल किया था गुड मिस्टर बी को. ठीक है, मिस्टर बी को इसने आपका सेल किया. सो A to B आपका ट्रांजेक्शन हुआ. सो A will draw that particular bill of exchange. I order to pay you.
this amount on this particular date. Okay, so A आपका, because this account is creditor and this account will be debited. Okay, so he's a debtor. So A will draw this particular bill, name of B. अब देखो ये क्या होता है, जैसे let's say that the transaction between these two parties was rupees 10 लाख, 10 लाख रुपए का इन्होंने एक सेल हुआ, तो ए ने ड्रॉ किया कि आप मुझे अगले महीने इस तारीख पे 10 लाख रुपए पेमेंट करें. अब in case of documentary bill, A will also submit the document supported to this particular sale. जहाँ पे ये सेल का कितने यूनिट बेचे थे एंड ऑल जो उसका सेल का इनवॉइस होता है ना, वो भी जाएगा इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री बिल. सो दैट्स व्हाई इट इज जनरली नोन एज डॉक्यूमेंट्री बिल एंड दे आर सेफर इन नेचर. मतलब यहाँ पे सारी विजिबिलिटी हमारे पास है कि क्या सेल हुआ है, कितना गया है एंड ऑल, वो सारे इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल होगा. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव डिमांड बिल. सो डिमांड बिल इज लाइक कि दे आर पेबल ऑन डिमांड, मतलब जब उनको प्रेजेंट कर दिया गया तब पेमेंट, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं उस अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए. सो इनका कोई डेट नहीं होता इनके ऊपर, जब उनको प्रेजेंट करेंगे तभी वो आपका पे आउट होगा. सो दिस बिल इज पेबल व्हेन इट इज डिमांडेड. द बिल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड डेट ऑफ पेमेंट, देयरफॉर द बिल हैज टू बी क्लियर्ड व्हेनेवर प्रेजेंटेड. तो जो ड्रॉअर आपका है जब उसको प्रेजेंट करेगा तब उसको अकाउंट, तभी उसको आपका क्या किया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल है डिमांड बिल. देन है हुसैन्स बिल, ये बहुत बार पूछा जाता है. सो ये टाइम बाउंड बिल आपके हो गए जिसमें डेट लिखा है, जैसे आफ्टर 1 month ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. सो इट इज टाइम बाउंड बिल which means the payment has to be made within given time duration. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, suppose that the time is 15th of May 2023. So जो पेमेंट है वो 15th of May 23 या उससे पहले आपका हो जाना चाहिए. So that is generally known as Hussein's bill. Next one, inland bill. So let's say this is India's map. Okay, so इनलैंड बिल क्या होता है, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है इंडिया की, इसके अंदर आपका ये यूज में आते हैं. लाइक इसके अंदर इश्यू किया गया और इसी के अंदर आपका पेमेंट होगा. सो ऑल एन इनलैंड बिल इज पेबल ओनली इन वन कंट्री एंड नॉट इन अनदर और फॉरेन कंट्री. दिस बिल अपोजिट ऑफ फॉरेन बिल. फॉरेन बिल दे कैन बी पेड आउटसाइड द कंट्री, वो इंडिया से बाहर भी उनके ऊपर क्या हो सकता है, आपका पेमेंट हो सकता है. बट इन केस ऑफ इनलैंड बिल दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, क्लीन बिल, दिस बिल डज नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट. जो सेल हमने, जैसे डॉक्यूमेंट बिल के केस में क्या था, जो सेल जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका प्रूफ भी हमने उसके जैसे जो सेल इनवॉइसेस थे वो भी लगाए थे. बट क्लीन बिल के केस में वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे. ओके, सो यू विल जस्ट फाउंड दिस पर्टिकुलर वन. एक खाली बिल ऑफ एक्सचेंज होगा और उसी के बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन्स करी जाएंगी. अगला फॉरेन बिल अपोजिट ऑफ इनलैंड बिल. सो फॉरेन बिल क्या हो गया, जहां पे इट लेट्स से इट इज ड्रॉन इन इंडिया, ये इंडिया में इश्यू किया गया एंड इट कैन बी पेड इन चाइना और सम अदर कंट्री. ठीक है, सो ये इंडिया में भी और आउटसाइड द इंडिया इनके ऊपर आपका बेसिकली ये डिमांड किए जा सकते हैं. अकोमोडेशन बिल, अ बिल दैट इज स्पॉन्सर्ड, ड्रॉन and accepted without any condition is known as accommodation bill. And all bill of exchange are basically accommodated bill. Okay, वो क्या होते हैं, accommodation bill होते हैं, क्योंकि किसी में भी ऐसे जैसा कोई डिमांड आपका नहीं होता. ठीक है, बहुत ही आसान है. अगला ट्रेड बिल, विच जनरली यूज फॉर ट्रेड पर्पज. ओके, ओनली फॉर ट्रेड पर्पज. सप्लाई बिल, सो ये होते हैं बेसिकली जो वेंडर्स आपके होते हैं, जो सप्लायर आपके हैं, उनके द्वारा रेज किए जाते हैं, उनके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं. ठीक है, दीज बिल आर बेसिकली ड्रॉन बाय दी सप्लायर्स. ओके, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे गिव कॉन्ट्रैक्ट टू सम XYZ सप्लायर. सो जब उनको पेमेंट के लिए करना होगा दे यूज दिस काइंड ऑफ बिल. ओके, सो द बिल दैट इज विथड्रॉन बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज सप्लाई बिल. नॉट ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे कैन बी फ्रॉम लाइक अदर जो सप्लायर्स हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, बट मेजरली यू विल फाउंड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, नेक्स्ट वन. चलो, सो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत छोटा टॉपिक है, कभी भी अगर आप पढ़ते हैं तो 2-4 पैराग्राफ में खत्म हो जाते हैं. सो दिस इज इट. ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया, सो इफ यू विल फाइंड एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, सो यू विल बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप सबको क्लियर हुआ होगा. अब देखो क्या होता है ना, whenever we study bill of exchange, kabhi bhi if you do Google or if you like read from any books and all, you'll along with that one na,
you'll also found about promissory note and check, खासकर promissory note. So bill of exchange and promissory note में ना बच्चों का थोड़ा सा क्या होता है, confusion होता है. We will cover this particular topic in detail, but in this particular session I'll give you an idea and I'll differentiate both of them. Okay, मतलब bill of exchange और promissory note में इसके बाद आपका कोई doubt नहीं रहने वाला है. So promissory note, दिस इज अ डेटर डॉक्यूमेंट. पहले तो आपको ये समझना है ये क्या है, आपका डेटर डॉक्यूमेंट. जो डेटर है उसके द्वारा ये इश्यू किया जाता है. ठीक है, सो बेसिकली इट इज ड्रॉन बाय द डेटर. अब देखो कैसे, सेम केस, मिस्टर ए हु सेल गुड्स टू मिस्टर बी. ए ने आपका सामान बेचा किसको, बी को, वर्थ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए का सामान इसने इसको बेचा. ओके, सो नाउ वी हैव टू पार्टीज. Mr. A is creditor and Mr. B is debtor. ठीक है, तो इसने अगर सामान खरीदा है, now he is liable to pay to Mr. A. So now in this particular case, अब देखो अगर bill of exchange होता तो क्या होता, ये इशू करता है. ठीक है, बट ये क्या है, डेटर इंस्ट्रूमेंट है. बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या है, आपका डेटर इंस्ट्रूमेंट. जैसे नाम से पता है ना, प्रोमिसरी नोट, एक ऐसा नोट जिस पर हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं. अब प्रॉमिस कौन करेगा इसमें, क्योंकि ये लाइबल है तो ये प्रॉमिस करेगा. सो मिस्टर बी विल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए this amount on this particular date या at the rate of this person on this particular date. So यहाँ पे जो चीजें हैं ना वो जस्ट क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा अपोजिट हो जाती हैं as compared to bill of exchange. So I, जैसे ये हमारा इसी को ले लें, मिस्टर ए एग्री एंड प्रॉमिस टू पे मिस्टर, सॉरी बी विल राइट दिस, मिस्टर बी टू ए, ऑर्डर सम ऑफ दिस, वैल्यू रिसीव विद द रेट ऑफ दिस एंड साइन बाय दिस. तो यहाँ पे आपको साइन मिलेंगे सिर्फ किसके, जो भी आपका डेटर होगा उसके. ठीक है, सो इस केस के साथ आई होप आपको ये समझ में आएगा. सो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ bill of exchange. The bill of exchange is basically drawn by the creditor or the seller. This is drawn by the debtor. मतलब हमारे उसको A ने इश्यू किया था, अब इसको कौन इश्यू करेगा, B आपका ड्रॉ करेगा. ठीक है, सो ड्रॉ, अब दो पार्टीज हैं आपके, मेकर इज, और ड्रॉर कौन है आपका, B, दी क्रेडिट डेटर्स, एंड रिसीवर अनदर पार्टी जो कि कहीं ना कहीं उसको आपका रिसीव करेगा, जिसका अकाउंट क्या होना है, आपका क्रेडिट होना है. ओके, सो वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन, normal definition, then legal definition. So a promissory note written refers to a written document or written promise. So पहली चीज, यहाँ पे भी सेम चीज, it's a written promise to its holder by an entity or individual to pay certain sum of money by a pre-decided date, and it's a legally binding, again same thing, because it generally comes under section 4 of Negotiable Instrument Act 1881. So you cannot make any kind of fake promises in these particular documents because these are generally governed by the Negotiable Instrument Act 1881. ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा फॉल्स प्रॉमिस होगा तो उसके अगेंस्ट में आपका जो लीगल चार्जेस हैं वो आपका फाइल हो सकती हैं. ठीक है, तो अगेन रिटन डॉक्यूमेंट, प्रॉमिस्ड एंड ऑल, ये जो सारी चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे. विल गो थ्रू द लीगल डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. तो ये क्या कहता है, सो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, पहला तो ये क्या है आपका, एक राइटिंग में है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, करेंसी नोट और बैंक नोट के अलावा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. सो ये भी आपका अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब जो प्रोमिसेस आपके हैं वो दीज प्रोमिसेस आर विदाउट एनी इफ एंड बट, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं लगाया गया है. ठीक है, ऐसा करेगा तो वैसा होगा, वैसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है. इसने हमें इतना सामान दिया तो इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका ये पैसा इतने समय में वापस करेंगे. ठीक है, साइन बाय द मेकर to pay certain sum of money only to or to order of a certain person or to the bearer of the instruments. Okay, so चीजें आपका सेम है, मतलब this document is generally known as debtor documents. It is like in this particular document, basically debtor he made a promise, I promise to pay you this amount in this particular future date. ठीक है, so debtor to creditor आपका जहाँ पे वो promise करें, it's a written document and we have a legal binding because it generally comes under the Negotiable Instrument Act 1881 and it acts as per the this particular the activities or the power and all everything that is generally defined under section 4 of
Negotiable Instrument Act 1881. So we have two parties. We found two parties in case of the promissory note. One is maker, drawer, okay, who made that particular promise. So an individual entity who make or draw the promissory note with a promise to pay a certain sum of money as specified in the promissory note. So maker is also known as promiser, जिसने वो promise आपका किया है, ठीक है. And another one is payee. The payee is the person whose favor the promissory note is drawn, जिसके favor में आपका promissory note क्या किया गया है, drawn किया गया है या फिर लिखा गया है, ठीक है. So in our case, Mr. B is maker and payee is Mr. A, ठीक है. ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि A ने मिस्टर A sell 50 lakhs goods to Mr. B, ठीक है. Suppose that this is the case. So he is a debtor, B is debtor and A is creditor, and it's a debtor document. It is issued by the debtor only. So debtor Mr. B is debtor and he's a maker of this particular and promiser. He also known as promiser. And pay is Mr. A in our case. Okay. So I hope you get this particular thing clearly. Okay. So this is it. So check आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा. So if you go through the check, so check different type of checks. So okay, so check is also part of negotiable instrument. And even like if you'll go through the different type of this promissory note as well. Okay. So we'll come with a detailed session based on promissory note only. जैसे आज हमने bill of exchange को A to Z पूरा समझा, वैसे ही आपका bill of exchange then वैसे ही check के ऊपर भी हम लोग discuss करेंगे. So hope you like this particular session. If you still have any query based on bill of exchange, ठीक है, I'll only quote bill of exchange. So you can mention your queries on comment section. In future sessions, I will cover the promissory note or the checks and different type of check and different type of promissory note and the important sections as well. So if you like, please do share with your friends and do share your like if you have any doubts or if you have any concern or if you have any suggestions, so do mention in comment section. If you really like this session, so do share with your friends so they can also take benefit from this particular video. Okay, so I'll see you soon. बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, जहाँ पे वन शॉट के अंदर हम लोग उस पर्टिकुलर सेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपका समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.